Good evening, everyone. So, we were dealing with bank reconciliation statement. In the previous lecture, we understood the concept of bank reconciliation statement. I mean, reconciliation is finding out the causes of difference between the two statement. जब हम रिकंसाइल करना बोलते हैं मतलब हम दो चीजों के डिफरेंसेस ढूंढते हैं. Why there is a difference between the two things is a reconciliation. And in our subject, we have to reconcile the two things. One, cash book bank column with passbook. Cash book bank column means bank account is maintained by account holder. It is maintained by the business. On the contrary, passbook is our account in the books of bank, which is maintained by the bank. Try to understand. And therefore, therefore, कैश बुक के एंट्रीज के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल, पासबुक के एंट्रीज के लिए बैंक इज रिस्पॉन्सिबल. सो मेरे बुक्स में जो बैंक का अकाउंट होता है, मेरे बुक्स में उनका जो अकाउंट है वो कैश बुक बैंक कॉलम है, एंड उनके बुक्स में जो मेरा अकाउंट है वो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है. आप जो भी बोलो चल जाएगा. एज बोथ कैश बुक एंड पासबुक are governed by same sets of transaction. कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं हमें समझना है. As both are governed by the same sets of transaction, obviously cash book and passbook should show same balance in amount but opposite in the nature. Amount should be same but the nature of balance should be opposite. अगर मेरे इधर कैश बुक में 1 लाख डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो पासबुक में 1 लाख क्रेडिट दिखना चाहिए. अगर मेरे इधर 1 लाख क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो पासबुक में 1 लाख डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अमाउंट शुड बी द सेम बट द नेचर ऑफ बैलेंस शुड बी अपोजिट. बिकॉज अगर मेरा कोई डेटर होता है तो उसका मैं क्रेडिटर होता हूं. दिस इज वेरी फंडामेंटल थिंग. कंसिडरिंग दैट ऑन एनी गिवन डेट, on any given point of time, the balance as per cash book should be equal to balance as per passbook in the amount but different in the nature of balance, debit credit. But sometimes that does not happen. Means the balance as per cash book and balance as per passbook may not be same. वो सेम क्यों नहीं हो सकते वो हमें समझना है. And when they are not same, we have to find out the reason for the differences and we have to note down those reasons. उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो हमें दो चीजें चाहिए. जैसे मैंने कल के एक एक्सरसाइज में मैंने आपको दो पिक्चर्स में डिफरेंस ढूंढने के लिए बोला था, तो आपने क्या किया, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 कंपेयर किया. If anything is in picture 1 but not in picture 2, or which is in picture 2 but not in picture 1, has created difference in the both pictures, which is common in both the pictures, is never the difference. Try to understand. Uncommon जो होता है ना, uncommon दोनों में से एक में ही है, दोनों में से किसी एक में ही है तो ही difference रहेगा. Similarly, for us, we have two things to compare. Cash book bank column and passbook. Cash book maintained by account holder, passbook maintained by the bank. So we will compare cash book with passbook and we will find out the reasons for differences. ठीक है. And this exercise is called as bank reco या reconciliation और BRS, bank reconciliation statement. ठीक है. यहां तक क्लियर है. Which transactions takes place? यहां तक क्लियर है क्या प्लीज एनीवन? आगे आगे चल सकते क्या? ये कल हमने डिस्कस किया था. ठीक है. लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ. लेट मी शेयर द स्क्रीन प्लीज.
Just a second. ओके, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है आप एक बार समझ में आ गया ना, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ये चैप्टर की खासियत है। ओके, ध्यान देना, लिखो यहां पे फॉर्मेट ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम, ध्यान देना। ध्यान देना, ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, टी फॉर्मेट में। डेबिट साइड इज a रिसीट साइड, credit side is a payment side. Whenever we receive money in bank, whenever we receive money in bank, try to understand, we record on receipt side. When we receive check into the bank account debit to debtor. So whenever we receive check, whenever the amount gets deposited in our bank account, हम हमारे इधर क्या करते हैं, रिसीट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। And whenever we make the payment, like we issued check, तो इंट्री आती है, सपोज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, we credit in to the bank account or credit to the like cash book. So all receipts are recorded on the debit side, all the payments, bank payments are recorded on the payment side, credit side. All the bank receipts will be recorded in the receipt side bank column, debit side, and all the bank payments will be recorded on the credit side of the cash book, payment side of the cash book. ठीक है? नहीं, similarly ध्यान देना, नाउ पासबुक, ये हम मेंटेन करते हैं और ये बैंक वाले मेंटेन करते हैं। फॉर्मेट ऑफ पासबुक, सिंपल फॉर्मेट और एक्चुअल फॉर्मेट बाद में लिखूंगा। फॉर्मेट ऑफ द पासबुक, ध्यान देना, फॉर्मेट ऑफ द पासबुक। देखो, जब हम बैंक को डेबिट करेंगे, हम बैंक को कब डेबिट करेंगे, व्हेन वी विल रिसीव द मनी इन द बैंक। हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक हमें उनके इधर क्रेडिट करेगी। तो हमारे इधर रिसीट, कैश बुक का डेबिट कॉलम इज अ रिसीट, वही पासबुक का क्रेडिट कॉलम रिसीट या डिपॉजिट होता है। एग्जैक्टली उल्टा, कैश बुक में जो डेबिट कॉलम होता है, रिसीट कॉलम, वो पासबुक में क्रेडिट कॉलम होता है। एंड हमारे इधर जो पेमेंट कॉलम होता है क्रेडिट, उनके इधर वो डेबिट कॉलम होता है जिसका नाम रहता है विड्रॉवल।
वो रहता है विड्रॉवल, वो रहता है विड्रॉवल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, हम बैंक को बोलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, चेक क्रेडिट कब होगा? हम बैंक को क्या पूछते हैं? चेक क्रेडिट कब होगा, चेक क्लियर कब होगा? क्रेडिट कब होगा मतलब आज हम आपको चेक दे रहे हैं, आप हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कब करोगे वो पैसा? हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है, मतलब बैंक हमें क्रेडिट करती है। सिंपल वर्ड्स में बोलो, जब हम बैंक को डेबिट करेंगे, जब हम हमारे बुक्स में मतलब कैश बुक में बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक उनके बुक्स में हमें क्रेडिट करेगी। और जब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे हमारे इधर, बैंक वाले हमें उनके बुक्स में डेबिट करेंगे। आई कैन शो यू सम एग्जाम्पल, ध्यान देना। लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल। ओके, आपको अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, 2 मिनट। Let me show you some real life bank statement. Let me show you. Okay, ध्यान देना। Let me share you the normal screen. ध्यान देना, ठीक है? This is an example. ये दिख रहा है? देखो, when we receive the money, आईडीबीआई बैंक में जो पैसा है आईडीबीआई बैंक हमें क्रेडिट करती है। यहाँ पे देखो डेबिट क्रेडिट लिखा होगा, मतलब हमें 16,640 रुपीज आ गए। कौन से तारीख पे आए? यहाँ पे देखो 1 जनवरी को। फिर 1 जनवरी को और आ गए 15,000, 1 जनवरी को और आ गए 33,001। ये क्रेडिट हुए हमारे अकाउंट में। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने डिपॉजिट किया, ये बैंक ने सब डिपॉजिट किया, यहां तक क्रेडिट है, मतलब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। डिपॉजिट होने पे यू कैन सी द बैलेंस हैज इंक्रीज्ड। कुछ तो 50,97,000 था, फिर 51 लाख हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेबिट है। केजी कुलकर्णी को हमने पेमेंट किया है, ये चेक नंबर है, चेक से पेमेंट हुआ है, बैंक ने हमें डेबिट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस कुछ तो 56,84,000 था। 25,000 का पेमेंट होने के बाद वो डिक्रीज हुआ है 56,58,000 ऑलमोस्ट। सो जब हमारे अकाउंट से पेमेंट होगा तो बैंक हमें डेबिट करेगी। देखो फिर क्रेडिट हुआ मतलब अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट हुआ। यहाँ पे देखो हमने रतन को पेमेंट किया कुछ तो 3,000 का, रतन को 3,000 का पेमेंट किया, डेबिट हुआ। यहाँ पे देखो डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट। यहाँ पे जेन कंप्यूटर्स को पेमेंट किया हमने 3540 का पेमेंट किया। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, जब हम एज ए राइट हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हमारे बुक्स में एंट्री आती है, एकतम के बुक्स में एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस रिसीव्ड अकाउंट। क्या एंट्री आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस। सो हम बैंक को डेबिट करते हैं, फिर हम वो चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं। वो 2-3 दिनों के बाद चेक क्लियर होता है, स्टूडेंट के अकाउंट से क्लास के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। एंड जब वो पैसे आते हैं बैंक वाले एंट्री पास करते हैं, दे रिसीव द कैश ना, उनको कैश तुम्हारे बैंक से क्लास के बैंक को पैसे मिलते हैं। एंट्री आएगी सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू राइट एकतम एकेडमीज अकाउंट।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक वाले हमें क्रेडिट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे बात करूं, लेट मी शो यू द फॉर्मेट अगेन, ध्यान देना। लेट मी शो यू द फॉर्मेट। अब ठीक है, अब रिलेटेड भी रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, ध्यान देना। क्या बोल रहा, ध्यान देना यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट हैपेंस, लाइक एग्जांपल, वी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हमने 10,000 बैंक में डाले, तो एंट्री क्या होगी इन द बुक्स ऑफ अस, हमारे बुक्स में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सपोज सेल्स अकाउंट, एंट्री क्या हो गई, हम बैंक में गए और बैंक वाले को 10,000 रुपए दिए, हमने एंट्री डाली, हमने हमारे बुक्स में एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश बुक में आएगा टू सेल्स 10,000, लिखना मत, जस्ट समझ लेना। सो जब पैसे आए, बैंक में पैसे आए, तो हमने डेबिट किया, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक, अब आपको बैंकर के पॉइंट ऑफ से एंट्री सोचनी, उनके पॉइंट ऑफ एंट्री सोचनी है। सो हम बैंकर है, हम बैंक में बैठे, कस्टमर हमारे पास आया और उसने 10,000 रुपए दिए, तो बैंक वाले को कैश मिली, तो ही विल से कैश अकाउंट डेबिट, ही विल से कैश अकाउंट डेबिट 10,000 हमारे इधर से, राइट, सपोज हमने कैश डाली थी, ऐसे बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कैश डिपॉजिट की थी, सो हमारे इधर से कैश गई और उनकी इधर कैश आई, कैश कम्स इनटू देम, कैश को उन्होंने डेबिट किया, टू दे क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट, मतलब वो हमें क्रेडिट करते हैं, उन्होंने हमें क्रेडिट किया, तो उनके बुक्स में कैश को डेबिट होगा, एंड ये जो कस्टमर का अकाउंट है पासबुक, इसमें क्रेडिट होगा बाय कैश 10,000। यहां पे एंट्री आ गई, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए 10,000, हमने बैंक को डेबिट किया और बैंक ने हमें क्रेडिट किया, मतलब जब जब हम बैंक को डेबिट करेंगे हमारे इधर, तब तक बैंक हमें क्रेडिट करेगी। सो जब हम बैंक में पैसे डालते हैं, चेक डालते हैं, हमारे बैंक में पैसे आते हैं, तो उस केस में हम बैंक रिसीट बोल के बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और वो पैसा हमारा है, वो पैसा हमारा है, इसलिए हमारी असेट है, हम डेबिट कर रहे हैं, और बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? बिकॉज वो पैसा हमारा उनके पास है, जब चाहे हम निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? उनकी असेट नहीं है, राइट, वो जो अमाउंट है वो मेरी अमाउंट है, सो दे शो इट पेएबल टू मी, सो उनके लिए मैं लायबिलिटी हूं, मेरे लिए बैंक में पैसा असेट है और उनके लिए वो लायबिलिटी है। सो when they will receive the money, cash account debit to account holder account, to account holder account, to account holder account. Then second ध्यान देना, when I withdraw cash from the bank for office use, एंट्री आती है, एंट्री क्या आती है, ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट। सपोज मैंने 6,000 विड्रॉ किए टू बैंक, मैंने बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, मैंने एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं यहां पे डालूंगा बाय कैश, ये बैंक कॉलम है, कौन सा कॉलम है, बैंक, कैश कॉलम में इग्नोर कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग, 6,000। सो मैंने बोला बैंक से 6,000 का पेमेंट हो गया, मैंने बोला बैंक से 6,000 का पेमेंट हो गया, बराबर, बैंक से 6,000 का पेमेंट हो गया, मैं बैंक में गया और मैंने 6,000 निकाले। अब बैंकर के पॉइंट ऑफ से देखो, बैंक वाले ने कस्टमर को 6,000 दिया, तो बैंक से कैश चली गई टू कैश, उन्होंने 6,000 दिए एंड दे गिव इट टू देयर अकाउंट होल्डर, तो एंट्री आ रही है अकाउंट होल्डर अकाउंट डेबिट 6,000।
अकाउंट होल्डर अकाउंट डेबिट 6000 तो कैश अकाउंट क्रेडिट 6000। वो अकाउंट होल्डर मतलब पासबुक, अकाउंट होल्डर उनके बुक्स में वो पासबुक रहेगा, हम उसको पासबुक बोलते हैं। टू कैश 6000। सो ध्यान देना, मेरा रिसीट कॉलम उनका डिपॉजिट कॉलम होता है एंड मेरा पेमेंट कॉलम उनका कौन सा कॉलम होता है? विड्रॉवल। मतलब कैश बुक का डेबिट पासबुक में क्रेडिट होता है एंड कैश बुक का क्रेडिट पासबुक में डेबिट होता है। मिरर इमेज उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा होता है, मिरर इमेज है। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल थर्ड, किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली सपोज एग्जांपल 20,000 रुपए डाले, कोई कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में 20,000 डाले, तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेटर अकाउंट क्रेडिट, टू डेटर अकाउंट क्रेडिट 20,000। क्या एंट्री आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 20। हमने कहां पे रिकॉर्ड किया? रिसीट साइड पे। क्यों रिसीट साइड पे? बिकॉज हमारे बैंक में पैसे आए हैं, हमने डेबिट किया। बैंक ने हमें क्या करना चाहिए? अगर हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं तो बैंक ने हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट। सो हमारा कस्टमर बैंक में गया था एंड बैंक रिसीव्ड मनी, सो बैंक को पैसा आएगा तो बैंक विल से कैश कम्स इन। बैंकर के पॉइंट से देखो, उनको कैश मिली 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू अकाउंट होल्डर्स, हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट करेंगे। अकाउंट होल्डर्स, अकाउंट, ऐसे कितने सारे अकाउंट होल्डर्स रहेंगे, उसमें से वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। तो अकाउंट होल्डर मतलब पासबुक में वो हमें क्रेडिट करेंगे बाय कैश 20। ध्यान देना, सो जब मैं उनको डेबिट कर रहा हूं मेरे इधर, वो मुझे क्रेडिट कर रहे हैं उनके इधर। जब मैं उनको डेबिट कर रहा हूं मेरे इधर, वो पासबुक में मुझे क्रेडिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उल्टा पिक्चर होता है, एग्जैक्टली उल्टा पिक्चर होता है। मतलब जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो आपको मैसेज आता है, राइट? लेट मी शो यू, अगर मेरे पास है कोई मैसेज आईसीआईसीआई, okay, I can show you, एक मिनट, I can show you, just a second। ठीक है, एक मैंने एक दो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। ओके, ओके, लेट मी शो यू। मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, 2 मिनट खाली। लेट मी शेयर द नॉर्मल स्क्रीन, एक सेकंड। मतलब आपको हर चीज समझे यार, ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। एक सेकंड, ध्यान देना। दिस इज अ इमेज, ध्यान देना। मुझे मैसेज आया आईसीआईसीआई बैंक वालों से, अभी का मैसेज, अभी मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, 4:42, अभी मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, ध्यान देना, ठीक है? क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अभी मुझे मैसेज आया है, या मैसेज 258 को है, 258 को है आज का, और ये 2.5 का है। मेरे अकाउंट से 2,000 का पेमेंट हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट से 2,000 का पेमेंट हुआ है। मैंने किसी को पेमेंट किया था 2,000 का और बाद में मैंने 500 का पेमेंट किया।
ट्राई टू, मैंने 2 पेमेंट किए। एक पेमेंट था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक पेमेंट था, राइट, एक पेमेंट था, मुझे किसी को 2000 रुपए देने थे, मैंने उसको 2000 रुपए दे दिए। सो मैंने पेमेंट किया तो मुझे तुरंत, मैंने एक्चुअली गूगल पे से पेमेंट किया था, तो मुझे बैंक से मैसेज आ गया। क्या मैसेज आ गया? अमाउंट डेबिटेड, उन्होंने डेबिट किया है, मतलब उन्होंने मेरे अकाउंट से 2000 रुपए विड्रॉ किए है और सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट किया होगा। बैंक ने क्या किया होगा? मेरे अकाउंट से निकाला होगा। निकालना मतलब विड्रॉ करना। बैंक ने मेरे अकाउंट से विड्रॉ किया 2000 रुपए और सामने वाले के अकाउंट में डिपॉजिट किया, मतलब उसको क्रेडिट किया। यहाँ पे ये 500 रुपए, बाद में मैंने और 500 रुपए का पेमेंट किया, ट्रांसफर किया, मेरे अकाउंट से चले गए। उसके लिए बैंक ने मुझे मैसेज भेजा कि उन्होंने मेरा अकाउंट क्या किया है? डेबिट किया है। तो टू दैट एक्सटेंट माय बैलेंस विल डिक्रीज, टू दैट एक्सटेंट माय बैलेंस विल डिक्रीज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं पेमेंट करता हूं, मेरे बुक्स में एंट्री आ गई। सपोज मैंने राम को पेमेंट किया, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000, मेरे बुक्स में एंट्री आ गई, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000। मैंने बैंक को क्रेडिट किया, मैंने पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड किया, कैश बुक का पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पे बैंक वाले विड्रॉल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, पासबुक का विड्रॉल कॉलम डेबिट होता है। इसलिए मुझे मैसेज आया कि उन्होंने मेरा अकाउंट डेबिट किया है, मतलब उन्होंने वो 2000 का विड्रॉवल दिखाया है। बाद में मैंने सपोज सीता को 500 रुपए का पेमेंट किया, तो मेरे बुक्स में एंट्री आ गई, सीता अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सीता अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी, सीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे बुक्स में एंट्री आ गई सीता टू बैंक। मैंने बैंक को क्रेडिट किया बिकॉज मैंने पेमेंट किया है। मैं पेमेंट करूंगा तो मैं क्रेडिट करूंगा बैंक को, और बैंक वाले मुझे डेबिट करेंगे। और बैंक ने मुझे मैसेज भेजा, दे हैव डेबिटेड माय अकाउंट फॉर ₹500। अनदर एग्जांपल, ध्यान देना, और एक रहेगा, मैंने 1-2 भेजे थे, हाँ शायद से वही है, लेट मी चेक। हाँ वही है, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है। एक स्टूडेंट है जिसने मुझे वो 18,000 रुपए भेजे थे, कल या परसों की बात है। उसने मुझे 18,000 रुपए भेजे थे, उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो जब मुझे वो मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो गए, मेरे बैंक में जब पैसे आ गए, तो बैंक ने मुझे एक मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा? कि 18,000 रुपए डिपॉजिट हुए, मतलब उन्होंने मुझे क्रेडिट किया है। देखो, बैंक वाले क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो आपको बैंक को डेबिट करना है। अगर बैंक वाले आपको डेबिट कर रहे हैं, मतलब आपके अकाउंट से निकाल रहे हैं वो पैसे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ तो 35,860 का डेबिट हुआ है, कुछ तो रहेगा। मैंने कहा पे तो पेमेंट किया होगा 35,860 का, इसलिए वो डेबिट हुआ है मुझे। ये क्या हुआ है? मुझे डेबिट हुआ है। क्यों डेबिट हुआ है? बिकॉज मैंने इतने का पेमेंट किया होगा। जब मैंने इतने का पेमेंट किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से विड्रॉ किया, तो बैंक ने मुझे मैसेज भेजा, योर अकाउंट इज डेबिटेड फॉर दिस अमाउंट। सो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? सो बैंक हमें डेबिट कब करती है? बैंक हमें डेबिट कब करती है? जब हमारे अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा तब। और बैंक हमें क्रेडिट कब करेगी? जब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा तब। इसलिए आपने अपने मम्मी पापा को सुना होगा, या कहाँ पे आपने, राइट, बैंक में अगर आप गलती से गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि लाइक लोग डेबिट क्रेडिट में बात करते हैं। मतलब जब कोई चेक डिपॉजिट करता है तो बोलता है चेक क्रेडिट कब होगा? क्रेडिट कब होगा मतलब डिपॉजिट कब होगा? मतलब आप मुझे क्रेडिट कब करोगे, मतलब आप मेरे अकाउंट में वो डिपॉजिट कब करोगे? समझ में आ रहा है? कोई बोलता है यार मेरे अकाउंट में डेबिट हुआ, डेबिट हुआ मतलब उसके अकाउंट से माइनस हुआ। जब आप एटीएम में जाते हो एंड यू विड्रॉ द मनी, आप एटीएम में जाते हो, यू विड्रॉ द मनी, तो आपको तुरंत एसएमएस आता है, यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर दिस। अगर आपने 1000 रुपए निकाले होंगे तो मैसेज आएगा, यूर अकाउंट नंबर डैश डैश एंड डैश हैज बीन डेबिटेड विद ₹1000। बैंक ने आपको डेबिट किया है, मतलब बैंक ने विड्रॉवल दिखाया है। अगर आप आपके अकाउंट में डिपॉजिट करोगे पैसे, तुरंत आपको मैसेज आता है, योर अकाउंट नंबर डैश 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 हैज बीन क्रेडिटेड। सो बैंक वाले क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब डिपॉजिट हो रहा है। बैंक वाले डेबिट कर रहे हैं, मतलब विड्रॉ हो रहा है।
हम डेबिट कर रहे हैं मतलब रिसीट हो रही है या डिपॉजिट, और हम क्रेडिट कर रहे हैं मतलब पेमेंट या विड्रॉवल। एग्जैक्टली उल्टा होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे चलो मेन स्क्रीन पे आते हैं, ध्यान देना। यस, उल्टा होता है, याद रखना, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान देना। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब मैंने डिपॉजिट किए 10,000, जब मैंने 10,000 डिपॉजिट किए, मैंने बैंक को डेबिट किया, हमारे बुक्स में मैंने उनको डेबिट किया, उन्होंने मुझे उधर क्या किया? क्रेडिट किया। जब मैंने वहां से पैसे निकाले, मैंने उनको क्रेडिट किया, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया, उन्होंने मुझे डेबिट किया। जब मेरे किसी कस्टमर ने बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट किए, मेरे किसी कस्टमर ने बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट किए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे किसी कस्टमर ने बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट किए, तो मैंने बैंक को डेबिट किया बिकॉज मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और बैंक ने मुझे क्रेडिट किया। एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कैश बुक का रिसीट कॉलम इज पासबुक का डिपॉजिट कॉलम, कैश बुक का पेमेंट कॉलम इज पासबुक का विड्रॉल कॉलम। हमारा डेबिट उनके इधर क्रेडिट रहेगा और हमारा क्रेडिट उनके इधर क्या रहेगा? डेबिट रहेगा। एग्जैक्टली उल्टा। अनदर एग्जांपल नंबर 4, सपोज मैंने चेक इश्यू किया रेंट पेमेंट करने के लिए, राइट? मैंने चेक इश्यू किया रेंट पेमेंट करने के लिए, तो मेरे बुक्स में एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिट। सपोज मैंने 8,000 का चेक इश्यू किया टू बैंक, 8,000, तो मैं मेरे इधर पेमेंट साइड पे लिखूंगा बाय रेंट 8,000। मैंने पेमेंट साइड पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। बैंक वाले क्या एंट्री डालेंगे? बैंक ने हमारे लिए पेमेंट किया ना, बैंक ने उनका रेंट नहीं पेड किया, उन्होंने हमारा रेंट हमारे अकाउंट से पेमेंट किया, तो वो हमारे अकाउंट से 8,000 निकालेंगे और वो जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसके बैंक को पैसा देंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हमारे अकाउंट से पैसा निकालेंगे, वो हमसे रिकवर करेंगे, वो 8,000 हमसे रिकवर करके सामने वाले को देंगे। अकाउंट होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, वो 8,000 हमें डेबिट करेंगे टू, सपोज उन्होंने कैश दिया, इसे मान के चलो कैश नहीं है, दूसरा अकाउंट रहेगा बट आपको समझने के लिए, तो वो हमें डेबिट करेंगे टू, सपोज मैं कैश बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट वोंट बी कैश, कुछ अलग अकाउंट रहेगा बट जाने दो। सो सिंपल बोल रहा हूँ, जब हमने बैंक को डेबिट किया 10,000, बैंक ने हमें क्रेडिट किया 10,000, जब हमने बैंक को 6,000 क्रेडिट किया, उन्होंने हमें डेबिट किया, हमने उनको 20,000 डेबिट किया, उन्होंने हमें 20,000 क्रेडिट किया, हमने उनको 8,000 क्रेडिट किया, उन्होंने हमें 8,000 डेबिट किया। सो अगर आप बैलेंस ढूंढते हो, यू कैन फाइंड द बैलेंस 30 minus 14, 30 minus 14, 16,000 का बैलेंस है। कैश बुक में 16,000 का बैलेंस है, और कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट साइड इज मोर। और पासबुक में देखो 30 minus 14, वहां पे भी 16,000 का बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। हमारी इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन है, हमारी इधर डेबिट साइड इज मोर, हमारी इधर डेबिट साइड इज मोर, उनके इधर क्रेडिट साइड इज मोर, उनके इधर सेम अमाउंट है बट वो क्रेडिट बैलेंस। सो कैश बुक एंड पासबुक टैली हो रहा है। कैश बुक में 16,000 डेबिट बैलेंस है, पासबुक में 16,000 क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट शुड बी सेम बट बैलेंस नेचर शुड बी अपोजिट। वही हुआ है। सो मुझे सिखाना क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक ही चीज सिखाना चाहता हूं कि हम कब डेबिट करते हैं और बैंक वाले कब डेबिट करते हैं, हम कब क्रेडिट करते हैं और बैंक वाले कब क्रेडिट करते हैं। हमारे इधर डेबिट मतलब रिसीट, हमारे इधर डेबिट मतलब रिसीट, एंड उनके इधर डेबिट मतलब विड्रॉवल। ठीक है, हमारे इधर डेबिट मतलब रिसीट, उनके इधर डेबिट मतलब विड्रॉवल। हमारे इधर क्रेडिट मतलब पेमेंट, उनके इधर क्रेडिट मतलब
सर यस यस। सर मुझे समझ नहीं आया कि वो जो आप पहले कर रहे थे उसमें बैलेंस पेमेंट और डिपॉजिट का 16,000 कैसे आ गया? क्या क्या? जो इसके पहले आपने इन दोनों कैश बुक और पासबुक में लिखा था, हाँ उसमें बैलेंस आपने 16,000 किया था। हाँ। वो मेरे को समझ में नहीं आया 16,000 कैसे आया। अरे बैलेंस कैसे निकालता है तू? 10,000 प्लस 20,000 कितना आया? 8, 30, 30 30। minus 6 minus 8 is 16। तो बैलेंस अकाउंट को बैलेंस कैसे करता है? हाउ डू यू बैलेंस एनी लेजर अकाउंट? डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल ना, या क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। मैंने ओके सर, ओके सर। अकाउंट में कितने आ गए? 20,000 आ गए बराबर। रिसीट कितनी? 20। और पेमेंट कितना है? 14। रिसीट इज 30, रिसीट इज 30, पेमेंट इज 14, तो बैलेंस कितना होगा? 16। यहां पे देख डिपॉजिट कितना है? 30, डिपॉजिट 30 है, पे विड्रॉवल कितने की? 14 की, तो बैलेंस कितना होगा? 16 ही होगा ना। वैसे आगे नेक्स्ट, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज। आगे मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट इतना नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे से लिख के देता हूं, ध्यान देना। मैं एकदम सिंपल तरीके से लिख के देता हूं, लिख लेना एवरीवन। अब इसके आगे लिखो, ये फॉर्मेट होगा लिख के। सो देयरफॉर लिखो एवरीवन, लिखो देयरफॉर कैश बुक डेबिट मतलब रिसीट इज इक्वल टू पासबुक क्रेडिट मतलब डिपॉजिट। जिसको हम रिसीट बोलते हैं वो लोग डिपॉजिट बोलते हैं। एंड कैश बुक क्रेडिट जिसको हम पेमेंट बोलते हैं इज इक्वल टू पासबुक डेबिट। हम जिसको पेमेंट बोलते हैं वो लोग उसको विड्रॉवल बोलते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं? विड्रॉवल। लिखो मतलब हमारा डेबिट उनके इधर क्रेडिट रहेगा। जब हम उनको डेबिट करेंगे वो हमें क्रेडिट करेंगे, जब हम उनको क्रेडिट करेंगे वो हमें डेबिट करेंगे। अगर वो हमें डेबिट करते हैं हम उनको क्रेडिट करेंगे, अगर वो हमें क्रेडिट करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बहुत सिंपल चीज है। नेक्स्ट आगे, देन आगे देयरफॉर लिखो यहां पे कैश बुक एंड पासबुक। एक टेबल लिख के दे रहा हूं, बहुत अच्छा टेबल है, ध्यान देना। ये आपको हर जगह पे समराइज करवा के देगा। कैश बुक एंड पासबुक, ट्रांजैक्शन और टू टाइप्स। एक होता है डेबिट ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश बुक में डेबिट ट्रांजैक्शन मतलब कौन सा? कैश बुक में डेबिट ट्रांजैक्शन मतलब कौन सा? रिसीट। एंड कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब कौन सा? पेमेंट। वही अब पासबुक में देखो, पासबुक में डेबिट ट्रांजैक्शन मतलब कौन सा? विड्रॉवल। एंड पासबुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब कौन सा? डिपॉजिट। राइट। सो कैश बुक में डेबिट मतलब रिसीट, कैश बुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट, पासबुक में डेबिट मतलब विड्रॉवल, पासबुक में क्रेडिट मतलब डिपॉजिट। पासबुक मतलब बैंक, बैंक के बुक्स में। डन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड what can be the nature of balance. The balance can be debit balance or balance can be credit balance.
कैश बुक में शो डेबिट बैलेंस और पासबुक, राइट, इट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ओके, हाँ बोल रहे वर्धन? हाँ वर्धन? सर कुछ नहीं, गलती से दब गया। हाँ, अब ध्यान देना इधर एवरीवन। कैश बुक में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, पासबुक में एसोसिएट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? नेचर ऑफ बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? डेबिट साइड, डेबिट टोटल इज ग्रेटर देन क्रेडिट टोटल। डेबिट बैलेंस मतलब यही होता है ना, डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल। अगर मैं बोल रहा हूं कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या? कैश बुक की डेबिट टोटल इज मोर देन कैश बुक की क्रेडिट टोटल। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? कैश बुक की डेबिट टोटल सपोज 15,000 है एंड इसकी क्रेडिट टोटल 12,000 ही है। सो कैश बुक की डेबिट टोटल 15,000 है, रिसीट 15,000 है, पेमेंट 12,000 का है, तो हम बोलते हैं हमारा बैलेंस डेबिट बैलेंस है 3,000 का। हम क्या बोलते हैं? हमारा डेबिट बैलेंस है 3,000 का। तो ध्यान देना, डेबिट बैलेंस मींस डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल। व्हाट इज डेबिट टोटल? रिसीट्स। डेबिट टोटल मतलब क्या? रिसीट्स। रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स। रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स मतलब हमने जितना बैंक में पैसा आया है हमारे बैंक में, सपोज 1 लाख रिसीट है हमारा, एक मंथ में हमारा 1 लाख रिसीट है और पेमेंट 80,000 है, तो हमारा 20,000 बैलेंस रहेगा बैंक में। दिस इज माई मनी विद द बैंक। 20,000 डेबिट बैलेंस है, दिस इज माई मनी इन द बैंक। तो इसको लिखा जाता है, ध्यान देना, राइट। देयरफॉर फेवरेबल बैलेंस, favorable balance as per cash book, as per cash book, favorable balance as per cash book। फेवरेबल मतलब क्या? मेरा 20,000 उनके पास है, ठीक है, मेरा पैसा उनके पास पड़ा है, वो डेबिट बैलेंस। मेरा कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखाता है, मतलब उतना मेरा उनके पास है। क्या कैन कैश बुक शो क्रेडिट बैलेंस? यस। कब क्रेडिट बैलेंस रहेगा? when credit total is greater than debit total। क्रेडिट बैलेंस कब रहता है? when credit total is more than debit total। like एग्जाम्पल, अब थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते, ध्यान देना। सपोज हमने पेमेंट किए, हमने पेमेंट 20,000 के किए, बट हमारी रिसीट 17,000 की है। क्रेडिट टोटल, पेमेंट टोटल इज 20,000 बट डेबिट टोटल, रिसीट टोटल 17,000, तो हम बैलेंस बोलते हैं 3,000। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? ऐसा हो सकता है क्या कि हम बैंक में ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं? अगर हम जितना है उससे ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनीवन? ये पता है आप लोगों को? उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। परफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। मतलब हमने 3,000 एक्स्ट्रा निकाले, हमारा बैंक में कितना है? 17,000 ही है, बट हमने कितने निकाले? 20,000। कितने का पेमेंट किया? 20,000। व्हेन पेमेंट्स एग्जिस्ट रिसीट्स, बैंक में करंट अकाउंट में पॉसिबल है, करंट अकाउंट में वो फैसिलिटी होती है, यू कैन मेक मोर पेमेंट देन व्हाट यू हैव ओनली 17,000 बट यू मेड पेमेंट ऑफ 20,000। तो आपने कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया है? 3,000। दैट 3,000 इज पेएबल टू बैंक, इट इज आवर लायबिलिटी। सो लिखो, क्रेडिट टोटल इज मोर देन डेबिट टोटल, मतलब टोटल पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स। पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स, दैट इज, इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस लिखो ठीक से। देयरफॉर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। सो ऑलवेज रिमेंबर, डेबिट बैलेंस कब होगा? पॉजिटिव बैलेंस कब होगा? कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक होता है रिसीट एंड पेमेंट, एक होता है रिसीट डेबिट एंड पेमेंट क्रेडिट। सो फेवरेबल बैलेंस कब रहेगा?
जब रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, जब डेबिट बैलेंस रहेगा तब फेवरेबल बैलेंस रहेगा. सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस. सर अनफेवरेबल बैलेंस कब रहेगा? जब पेमेंट्स इन कैश बुक आर मोर देन रिसीट्स इन द कैश बुक. कैश बुक में अनफेवरेबल कब रहेगा? पेमेंट्स इन द कैश बुक आर मोर देन रिसीट्स इन द कैश बुक. पेमेंट मतलब क्रेडिट्स इन द कैश बुक आर मोर देन रिसीट्स मतलब डेबिट्स इन द कैश बुक. जितना क्रेडिट है इज मोर देन डेबिट, मतलब नेट क्रेडिट बैलेंस रहेगा. सो क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इज ओवरड्राफ्ट. देखो कैश बुक में 3 कॉलम होते थे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. कैश कॉलम ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, कैश कॉलम ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. कैश में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट बैंक में शो डेबिट बैलेंस और बैंक में शो क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस मतलब निगेटिव. डेबिट मतलब फेवरेबल, क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल इन केस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम. ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो ध्यान देना कैश बुक का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्रक्स है चैप्टर का. कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं, आपको कैश बुक याद होना चाहिए. डेबिट कॉलम मतलब रिसीट, क्रेडिट कॉलम मतलब डेबिट साइड इज रिसीट साइड, क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड. ध्यान देना. सो अगर राइट इसलिए हम बोलते हैं कैश बुक डेबिट मतलब रिसीट्स एंड कैश बुक क्रेडिट मतलब पेमेंट. सो देयर कैन बी डेबिट ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक. According to right balance, there can be 2 balances. Debit balance मतलब कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब क्या? डेबिट इज मोर देन क्रेडिट. डेबिट बैलेंस मतलब क्या? डेबिट इज मोर देन क्रेडिट. अच्छा, सो कैश बुक में डेबिट क्या होता है? रिसीट्स. क्रेडिट क्या होता है? पेमेंट. रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस. मतलब मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, वो डेबिट बैलेंस कैश बुक दिखाता है. कभी कभी उल्टा हो सकता है, राइट? माय कैश बुक शो नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस. ये कब होता है? व्हेन माय पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स. क्रेडिट पेमेंट मतलब क्रेडिट्स आर मोर देन रिसीट डेबिट. जब क्रेडिट बैलेंस कैश बुक दिखाता है वो ओवरड्राफ्ट होता है, नेगेटिव होता है. पासबुक में देखो, पासबुक में डेबिट बैलेंस कब रहेगा? सेम. कहा कोई भी बुक होने दो रे, कोई भी अकाउंट होने दो, कोई भी बुक होने दो, डेबिट बैलेंस मतलब क्या? डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल. अच्छा, पासबुक में डेबिट टोटल मतलब क्या? पासबुक में डेबिट टोटल मतलब क्या? विड्रॉवल. एंड क्रेडिट मतलब क्या? डिपॉजिट. सो कैन आई से जब पासबुक में डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल मतलब विड्रॉवल, withdrawals are more than withdrawals are more than deposits. हमने बैंक से ज्यादा निकाले देन व्हाट वे डिपॉजिटेड. हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और हमने 1,30,000 निकाले. सो टोटल ऑफ विड्रॉवल इज 1,30,000, टोटल ऑफ डिपॉजिट्स इज 1 लाख. सो हमने 30,000 एक्स्ट्रा निकाला है, हमने बैंक से 30,000 एक्स्ट्रा निकाला है. तो दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस एज पर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक. पीबी मतलब पासबुक. देखो डेबिट एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज फेवरेबल एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अनफेवरेबल. आगे पासबुक में शो क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं दिखा सकता? कब दिखाएगा क्रेडिट बैलेंस? ध्यान देना, जब क्रेडिट टोटल इज मोर देन डेबिट टोटल. पासबुक में क्रेडिट टोटल मतलब क्या होती है? डिपॉजिट्स इज मोर देन डिपॉजिट्स आर मोर देन विड्रॉवल्स. डेबिट मतलब विड्रॉवल्स, पासबुक में डेबिट मतलब विड्रॉवल्स. Therefore, it is called as favorable balance. Favorable balance as per पासबुक. इसको हम और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक को हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बोल सकते हैं. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखो और फिर मैं आपको ठीक से समझाता हूं. लिखो, पहले ये लिखो, ठीक से लिखो. एवरीवन हैज टू राइट. ये क्रक्स है चैप्टर का.
लिखने के बाद यस बोलो, लिखने के बाद यस बोलो, सो दैट मैं आपको इस जो टेबल है ठीक से समझाता हूं। ओके गुड, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैश बुक डेबिट इज इक्वल टू पासबुक क्रेडिट। पासबुक डेबिट, सॉरी, कैश बुक क्रेडिट मतलब पासबुक डेबिट। कैश बुक डेबिट मतलब क्या, रिसिप्ट्स। कैश बुक डेबिट मतलब क्या, रिसिप्ट्स इज इक्वल टू पासबुक क्रेडिट मतलब डिपॉजिट्स। जिसको हम रिसिप्ट बोलते हैं, पासबुक वाले उसको डिपॉजिट्स बोलते हैं। कैश बुक क्रेडिट मतलब पेमेंट, पासबुक क्रेडिट मतलब पेमेंट्स आर इक्वल टू पासबुक डेबिट, वो लोग उसको विड्रॉल बोलते हैं। जिसको हम पेमेंट बोलते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉवल्स। एग्जैक्टली उल्टा। देयरफॉर कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक में डेबिट बैलेंस कब रहेगा, कैश बुक में डेबिट बैलेंस कब रहेगा, व्हेन रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, राइट, इज इक्वल टू पासबुक क्रेडिट बैलेंस। डिपॉजिट्स आर मोर देन विड्रॉवल्स। सो कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में कौन सा होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। एंड देयरफॉर, राइट, कैश बुक डेबिट बैलेंस इज, हम इसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। इसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं, कैश बुक डेबिट बैलेंस को असेट है ना हमारी, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है मतलब वो क्या है, असेट, इट इज फेवरेबल बैलेंस। तो कैश बुक का फेवरेबल होता है डेबिट, कैश बुक का फेवरेबल होता है डेबिट, पासबुक का फेवरेबल होता है क्रेडिट। नेक्स्ट, आगे, अच्छा स्क्रीन पे ब्लैक दिख रहा है, नाउ इज इट क्लियर, नाउ इज इट क्लियर। शायद से वो ये आता है, नेम नेम ये आता है इसलिए शायद से, ठीक है, ध्यान देना। कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक डेबिट बैलेंस इज अ फेवरेबल बैलेंस, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल। सिमिलरली कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस कब रहेगा, जब पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स। ओवरड्राफ्ट, हम इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो उनकी इधर क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट, सो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, तो उनकी इधर एग्जैक्टली अपोजिट, उनका डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल रहेगा और उनका क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल रहेगा। लिख लेना, लिखो, लिखो, ओके, हाँ बोल रहे, हाँ सर दोनों सर कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस में दोनों फेवरेबल क्यों है, बिकॉज हम हमारे बुक्स में जो डेबिट दिखता है उनके बुक्स में वो क्रेडिट दिखता है। हाँ बट वो एक फेवरेबल और दूसरा अनफेवरेबल होना चाहिए ना। अरे मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ ना, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे इधर क्या फेवरेबल रहेगा, मेरे, अच्छा और उनके अगर इधर क्रेडिट है तो मेरे लिए फेवरेबल है ना। हाँ
मैं मेरे पॉइंट ऑफ देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास दो बुक्स है, कैश बुक है और दूसरा मैंने पासबुक लाया है, तो मेरा फेवरेबल मेरे बुक्स में डेबिट रहेगा और उनके बुक्स में मेरे लिए फेवरेबल क्या रहेगा, क्रेडिट ना। यस सर, समझ गया। मेरे लिए अनफेवरेबल क्या रहेगा, मेरे इधर अनफेवरेबल क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, और उनके इधर मेरे लिए अनफेवरेबल क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। सो फेवरेबल फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, फेवरेबल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होना हमारे लिए अच्छी बात है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होना हमारे लिए अच्छी बात है, मतलब हमारा पैसा उनके पास है, हमें उनसे लेना नहीं है, हमें उनको देना नहीं, हमें उनसे लेना है। बट अगर वही पासबुक वाले डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं, मतलब उतना हमें उनको देना है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस इज रियली गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज उतना पैसा आपका उनके पास डिपॉजिट है। अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब उतना आपने विड्रॉ किया है ज्यादा, आपको उनको देना होगा। सो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस इज गुड थिंग फॉर यू, पासबुक में डेबिट बैलेंस is liability for you. So can I say cash book debit balance is asset for us. वही मैं बोल रहा हूं, पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज असेट फॉर अस। उनके उनके इधर क्रेडिट है, मतलब उनके लिए लाइबिलिटी है, उनके इसमें क्रेडिट है, मतलब बैंक की लाइबिलिटी हमारे क्या होगी, असेट। बैंक की लाइबिलिटी हमारे लिए क्या होगी, असेट। समझ में आ रहा है। देयरफॉर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमारे इधर लाइबिलिटी है, हमारे इधर लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, उनके लिए असेट रहेगी, उनके बुक्स में डेबिट रहेगा। लाइबिलिटी फॉर अस, हमारी लाइबिलिटी उनकी असेट रहेगी, तो उनके लिए वो क्या रहेगा, डेबिट। उनके बुक्स में वो क्या दिख रहा होगा, डेबिट बैलेंस। देखो सिंपल इसमें बोलता हूं, डेबिट बैलेंस मतलब असेट, क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी। बैंक अकाउंट कैन बी असेट और लाइबिलिटी, कैन बी इनकम और एक्सपेंस। ध्यान देना। सो मेरे इधर डेबिट बैलेंस इज असेट, मेरा पैसा, मेरे इधर क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरी लाइबिलिटी, मुझे देना है। सो डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस इज अनफेवरेबल कैश बुक के हिसाब से। उनके इधर डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब उनकी असेट दिख रही है, मतलब मेरी वो क्या रहेगी, लाइबिलिटी। पासबुक में डेबिट दिख रहा है, मतलब उनके बुक्स में डेबिट बैलेंस उनकी एसेट होगी, मतलब मेरी लाइबिलिटी है, मुझे उनको देना है, तो मेरे लिए अनफेवरेबल हो गया वो। उनके बुक्स में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, उनके बुक्स में मतलब पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब उनकी वो लाइबिलिटी है, तो मेरे लिए वो क्या होगी, एसेट। तो वहां पे क्रेडिट रहना मेरे लिए अच्छी बात है, वहां पे डेबिट रहना मेरे लिए अनफेवरेबल है। मेरे इधर डेबिट मेरे लिए फेवरेबल है, मेरे इधर क्रेडिट अनफेवरेबल है, उनके इधर क्रेडिट मेरे लिए फेवरेबल है, उनके इधर डेबिट मेरे लिए अनफेवरेबल है। समझा या नहीं समझा, अभी तक डिस्कशन समझा या नहीं समझा। अब आपको टाइप करना है, ध्यान देना, एवरीवन हैज टू टाइप, ठीक है, ध्यान देना। ओके ध्यान देना, एवरीवन हैज टू टाइप। क्या है, ध्यान देना। मैंने चेक डिपॉजिट किया, तो बैंक वाले मुझे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, पासबुक में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। मैंने चेक डिपॉजिट किया, बैंक वाले क्या करेंगे, परफेक्ट क्रेडिट करेंगे, गुड, क्योंकि डिपॉजिट होने पे वो क्रेडिट करेंगे। किसी कस्टमर ने बैंक में 1,00,000 रुपए डाले, मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए डाले, तो बैंक वाले मुझे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए डाले, तो बैंक वाले मुझे क्या करेंगे, पासबुक में क्या होगा, डिपॉजिट होगा ना, क्रेडिट, क्रेडिट होगा। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन माय बिहाफ, बैंक ने मेरे लिए डिविडेंड कलेक्ट किया और मेरे अकाउंट में डाल दिया। होता है ना, रिलायंस वालों ने डिविडेंड अनाउंस किया और रिलायंस वाले ने मेरे बैंक में बोला कि प्रसाद को देना, ये ले लो, तो बैंक वाले मुझे क्रेडिट करेंगे। जब जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, जब जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मैं बैंक को डेबिट करूंगा, बैंक वाले मुझे क्रेडिट करेंगे। मेरे टेनेंट ने
मेरे अकाउंट में रेंट ट्रांसफर किया, तो बैंक वाले मुझे डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? मेरे टेनेंट ने मेरे बैंक में रेंट ट्रांसफर किया, तो बैंक, मेरे बैंक में पैसे आ गए मतलब डिपॉजिट हो गए, तो बैंक वाले क्रेडिट करेंगे। मेरे बुक्स में एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूं मतलब बैंक वाले मुझे क्या करेंगे? क्रेडिट। ध्यान देना, बैंक ने मेरा ईएमआई पेड किया, बैंक ने मेरा ईएमआई पेड किया, तो बैंक वाले मुझे डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? बैंक ने पेड किया मतलब मेरे अकाउंट से निकाला, विड्रॉ किया, जब जब मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा, जब जब मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा मैं कैश बुक में क्रेडिट करूंगा और बैंक वाले पासबुक में डेबिट करेंगे। बैंक ने मुझे चार्जेस लगाए, बैंक ने मुझे चार्जेस लगाए, तो मुझे बोलो बैंक मुझे डेबिट करेगी ना, मेरे अकाउंट से चार्जेस लगाने मतलब विड्रॉ करेगी। यस। अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, अलाउ किया, तो बैंक मुझे डेबिट करेगी क्रेडिट करेगी? आई रिसीव्ड इंटरेस्ट, बैंक मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट डिपॉजिट करेगी मतलब क्रेडिट करेगी, मैं डेबिट करूंगा वो क्रेडिट करेंगे। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक वाले मुझे डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? चार्ज किया, विड्रॉ किया, डेबिट। समझा? ऐसा सोचना है। जब जब मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे बैंक वाले मुझे क्रेडिट करेंगे, एंड जब जब मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे, विड्रॉ होगा, बैंक वाले हमें पासबुक में डेबिट करेंगे। और एग्जैक्टली हम उल्टा करते हैं, हमारे इधर डेबिट, कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट होगा, कैश बुक का क्रेडिट पासबुक में डेबिट होगा, पासबुक का डेबिट कैश बुक में क्रेडिट होगा, पासबुक का क्रेडिट कैश बुक में डेबिट, उल्टा। इसलिए जब कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है असेट, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, हमारे बुक्स में कैश बुक होता है, वहां पे डेबिट है असेट, तो उनके इधर लायबिलिटी होनी चाहिए, उनके इधर क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो पासबुक में क्रेडिट दिखना चाहिए। हमारी असेट बैंक के लिए लायबिलिटी होगी, तो हमारे इधर जो डेबिट बैलेंस दिख रहा है उनके इधर क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए। हमारे इधर लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज अ लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट, हमारी लायबिलिटी उनके लिए असेट होनी चाहिए, तो पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस होना चाहिए, बट अमाउंट सेम होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट उल्टा रहेगा, अमाउंट विल बी सेम। अरे समझा क्या आज का डिस्कशन? मैंने बहुत बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग हमें फीस देते हो ना, तो हमारे बैंक वाले हमें क्रेडिट करते हैं। हमने किसी को पेमेंट किया तो बैंक हमें डेबिट करती है, हमने रेंट पेड किया बैंक हमें डेबिट करेगी, हमने ईएमआई पेड किया बैंक हमें डेबिट करेगी, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया बैंक के थ्रू, बैंक हमें डेबिट करेगी, हमने कंप्यूटर परचेस किया और चेक इशू किया बैंक हमें डेबिट करेगी। बैंक हमें डेबिट करती है, हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, बिकॉज हमारे बुक्स में आती है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम पेमेंट करते हैं, कैश बुक में हम क्रेडिट करते हैं, पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, मतलब पासबुक में विड्रॉवल कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब जब हम बैंक को डेबिट करते हैं, रिसीट दिखाते हैं, बैंक वाले डिपॉजिट दिखाते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमारे इधर का डेबिट उनके इधर क्रेडिट, हमारे इधर का क्रेडिट उनके इधर डेबिट। इतना भी समझ में आ गया तो बहुत सारा चैप्टर अपने आप समझ में आएगा। समझा नहीं समझा? यस और नो? राइट। सो यहां तक क्लियर है क्या? कल लेक्चर नहीं होगा, परसों लेक्चर होगा, ठीक है? वी विल कंटिन्यू विद द कंसेप्ट, राइट? हम धीरे धीरे समझ, बिकॉज ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है और ये सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है? चाहे तो अगर आपके पास पासबुक मिलता है, आपके मम्मी पापा का पासबुक मिलता है, एक बार लेके बैठो और देखो उन्होंने क्रेडिट किया है डेबिट किया है, और देखो पैसे आए या गए। आपके मम्मी पापा का पासबुक लेके बैठो, कुछ नहीं होता है, जितना समझता है उतना समझता है, ठीक है? देव बोल रहा है उसके पास खुद का है। इको उसे देखो, इको का लेक्चर मेरा 12th का रिवीजन खत्म होने पे मैं आप एक बार मैं स्टार्ट करूंगा तो डेली लेना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज ऑनलाइन है, आपके और मेरे टाइम भी मैच नहीं होते। किसी का मॉर्निंग में कॉलेज है, किसी का आफ्टरनून में कॉलेज है। मेरा अभी 10:30 बजे रात को लेक्चर खत्म होते हैं, सुबह 7 बजे स्टार्ट होते हैं, रात को 10:30 बजे होते हैं,
अभी मेरा इको के रिवीजन चल रही है 12th की, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर आपके इको पे लग जाऊंगा, कंटिन्यूसली इको ले लूंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो हम 12th स्टार्ट कर रहे हैं, हम 15 अप्रैल को भले ही 12th स्टार्ट कर रहे हैं, डज नॉट मीन कि मैं 11 छोड़ रहा हूं। मैं आपके एग्जाम होने तक 11 के डेली लेक्चर रहेंगे, जैसे मेरा डेली लेक्चर होता है, अप्रैल एंड तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सर कैसे खत्म होगा? देखो बीआरएस 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, बीआरएस 15 अप्रैल तक, फिर आएगा रेक्टिफिकेशन, आई विल टेक रेक्टिफिकेशन। तो आप बोलोगे सर फाइनल अकाउंट्स आप कब लोगे? 11 का फाइनल अकाउंट्स जो लास्ट चैप्टर है वो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं वहां पे ले लूंगा। समझ में आ रहा है? तो एक ही इसमें मैं दोनों करता हूं, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। 11 का लास्ट चैप्टर जो होता है हम 12th स्टार्ट करके उसमें कवर करते हैं, बिकॉज दो इधर जब खत्म होता है 12th वहां से स्टार्ट होता है, तो वो चैप्टर हम 12th में कवर करेंगे। 11 12 अपने आप दोनों हो जाएगा, बिकॉज चैप्टर वही है, क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन भी वही है। तो हम वो फाइनल अकाउंट्स कर रहे होंगे जो 11 का भी काम कर रहा है, 12th का भी कर रहा है, राइट, एंड ये चलेगा, ठीक है। देखो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि I cannot run 3 or 4 chapters simultaneously, ठीक है, एक चैप्टर रहेगा यार, उतना थोड़ा एडजस्ट कर लो यार प्लीज, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन। इफ यू फाइंड एनी अनलेस अगर तुझे प्रॉब्लम आता है पेपर में, कॉल मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है, तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू।